Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue Democratic Politics, chapter number 2, part 3 of What is Democracy, Why Democracy. Let's continue as we have already continued in part 2, Arguments Against Democracy. We are going to continue in part 3, that is Arguments in Favor of Democracy. What if democracy is there? A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. Let's take an example of India and China famines हुई थी 1958 between 1958 and 1961 में. तो जब चाइना वॉज हिट बैडली, इंडिया डिड नॉट फेस एज बैडली डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक कंडीशन. ऑब्वियसली वो वीक हो गई थी बिकॉज ऑफ फैमाइन, लेकिन चाइना की जैसी नहीं. Reason for this could be that India responded to the food security in a way that Chinese government did not. इंडिया ने जो रिस्पॉन्ड किया फूड स्कैरसिटी में, वैसा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया था. सो वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैरसिटी बारे में देखा. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है बिकॉज ये बहुत अकाउंटेबल फॉर्म है. एकदम बराबर हम बोल सकते हैं. Like democracy is better than other form of government in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. So if the rulers don't want to, they don't have to act accordingly the wishes of the people. So democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. इसीलिए तो बोला है कि democratic government is a better government because it is more accountable form of government. So that was the first point. Now second is democracy improves the quality of decision making. कि डेमोक्रेसी कैसे इम्प्रूव कर सकती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. कंसल्ट कर सकते हैं हम किसी को, डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन. एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मतलब एक ही पर्सन डिसाइड नहीं करेगा, इट विल इन्वॉल्व मैनी पर्सन. डिस्कशंस होंगे, मीटिंग्स होगी, एंड दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स. और सब साथ में मिलकर रहेंगे तो मिस्टेक्स जो भी है फाइंड आउट कर सकेंगे. दिस में टेक टाइम, बट however the advantage of taking time over important decision, it reduces the chances of rash or irresponsible decision. भले थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा because many people will participate and then they may take decision, but irresponsible decision और rash decision से तो बच सकेंगे. So quality of decision making improve हो सकती है. That was the second point in favor. Third is democracy provides a method to deal with differences and conflicts. डेमोक्रेसी एक मेथड है कि जो डील कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट से, मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं उससे. इन एनी सोसाइटी हमें पता ही है पीपल आर बाउंड टू फेस, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. हर एक सोसाइटी में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के पीपल हमें मिलेंगे और इंटरेस्ट, हमें जो अच्छा लगता है वो उनको अच्छा नहीं लगेगा. दिस डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आवर्स. और ये पूरे कंट्री में ऐसे है which has an amazing social diversity, because India एक ऐसा country है जहाँ पे हमें diversity दिखती है. People belonging to different region speak different languages, practice different religions and have different caste. जो people belong करते हैं different region से, they are speaking different languages, different religion, practice करते हैं different caste के हैं. So the preference of one group can clash with those of other. जो प्रेफरेंस दे रहा है जिसको, उसका तो व्यूज़ क्लैश हो गए दूसरे पर्सन से. तो ये कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते, सॉल्व कैसे कर सकते? डेमोक्रेसी से. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. दैट इज इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर और लूज़र. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली. सो यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस से बच सकते हैं. सो यहाँ पे when number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. वो हमारा डिसीजन के बारे में था. और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है तो डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली, बिकॉज इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, राइट. सो यही एक मेथड है डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट से दूर करने के लिए. Next is democracy enhances the dignity of citizen. How? That democracy is based on the principle of political equality. के जहाँ पे democracy है, democratic country है, political equality should be there.
पॉलिटिक्स में, इट रिकग्नाइजेज दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड, उनको भी सेम स्टेटस मिलना चाहिए जितना रिच एंड एजुकेटेड पीपल को मिलता है। मतलब अथॉरिटी जो रिच एंड एजुकेटेड पीपल को मिलती है वैसी ही पुअर एंड लीस्ट एजुकेटेड को मिलनी चाहिए। सो दिस विल बी द इक्वालिटी। सो ये डिग्निटी ऑफ सिटीज़न में आ जाएगा कि हाँ, इट रिकग्नाइजेज द डिग्निटी, कि भले ही वो छोटा पर्सन है लेकिन हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, भले ही वो एजुकेटेड नहीं है लेकिन उसको भी सेम स्टेटस दिया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी दूसरे कई गवर्नमेंट के फॉर्म से डेमोक्रेसी इज़ बेटर क्योंकि ये हमें अलाउ करता है टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। Even if no government can guarantee that no mistakes will be made, in a democracy one can be sure that it will not be hidden for too long. अगर कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं करता कि मिस्टेक नहीं होगा तो डेमोक्रेसी जो है श्योरली बोल सकता है कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो हिडन तो नहीं रहेगी। इट मेक स्पेस फॉर पब्लिक डिसीजन, यहाँ पे पब्लिक डिसीजन के लिए स्पेस मिलती है ऑन दैट मिस्टेक्स। देयर इज़ ऑल्सो रूम फॉर करेक्शन, और भले ही दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, मिस्टेक्स होती है एंड उनको एक स्पेस दी जाती है करेक्शन के लिए। रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और दे कुड देमसेल्व्स भी चेंज। रूलर्स को अकॉर्डिंग अगर उनकी मिस्टेक हुई है उनको डिसीजन चेंज करना है या तो खुद को चेंज कर देना है। Thus, we can correctly infer that, conclude that while democracy may not be the solution to all problem, it is still clearly better than any other alternative. जब हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर नहीं है, सोल्यूशन नहीं है हर एक प्रॉब्लम के, बट इट इज़ स्टिल बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वी कैन से दैट। सो दिस वर द आर्ग्यूमेंट्स in favor for democracy. Now let's move towards the last topic of this chapter, that is broader meanings of democracy. हमने डेमोक्रेसी का एक मीनिंग तो देखा, that it is a form of government in which rulers are elected by the people. Now let's go ahead. In this chapter the meaning of democracy is discussed in a descriptive sense, that is students get to learn about democracy as a form of government, like right जो अभी मैंने बोला, thus helping them to identify a clear set of minimal features. क्लियर सेट है मिनिमम फीचर जो डेमोक्रेसी को रिक्वायरमेंट है, जिसके जो हमने फीचर्स पढ़े 4। द कॉमन फॉर्म अडॉप्टेड बाय डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या है कॉमन फॉर्म, कौन सी है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल पीपल डू नॉट रूल, हर एक पीपल रूल नहीं करते। अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन, हर एक पीपल का डिसीजन नहीं लेकिन जो मेजॉरिटी है उनके डिसीजंस हाथ में आते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब हमारे बिहाफ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारा सुनने के बाद जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो वहाँ पे रखेंगे एंड फाइनली डिसीजन विल बी टेकन। दिस हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द रीज़न, क्यों मेजॉरिटी का, बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो कितने सारे पीपल इन्वॉल्व है ऑलरेडी, दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर। सभी पर्सन के साथ मिलकर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑफकोर्स इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। और साथ में मिलकर इतने सारे पीपल का सुनने के बाद कलेक्टिव डिसीजन लेना इट वुड बी इम्पॉसिबल। सो अच्छा है कि मेजॉरिटी जो भी हो अकॉर्डिंगली दे कैन टेक डिसीजन। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, अगर चलो उन्होंने टाइम भी निकाल दिया लेकिन हर एक सिटीजन के पास तो टाइम नहीं होगा बैठने के लिए। द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, हर एक डिसीजन में हमें पार्ट लेना, आधे जन को तो पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है, राइट। सो सिटीज़न के पास टाइम नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बिजी होता है, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती है कि हर एक डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स, लाइक दे कांट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी मैटर। Democracy as a principle can go beyond the government and can be applied to any sphere of life. Democracy as a principle की बात करें तो like it can go beyond the government, मतलब गवर्नमेंट भी नहीं मान सकते, गवर्नमेंट का नहीं चलता यहाँ पे। मेन थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पीयर ऑफ लाइफ। पीपल यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, लेकिन एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए
कि हर एक डेमोक्रेसी का एम क्या होना चाहिए। और एम कब आएगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हम सब प्रिपेयर करें, तो वो सब अकॉर्डिंग टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल को हर एक राइट ड्यूटी और वो सब मिलना है, अकॉर्डिंगली वो बोल सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। However, if the ideals of democracy are considered, then no country in the world is correctly democratic. अगर हम ऐसी आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी को कंसिडर करें तो कोई भी वर्ल्ड, मतलब कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड में, तो वो करेक्टली तो हम बोल नहीं सकते कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्टिल हमने डेमोक्रेसी को तो समझ लिया कि ये आइडल है, आइडल। इट विल एक्सप्लेन वाई टू वैल्यू डेमोक्रेसी, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। डेमोक्रेसी के बिना हम नहीं रह सकते। इट इनेबल्स द पीपल टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई देयर वीकनेसेस। डेमोक्रेसी से हमें पता चलेगा हमारी वीकनेस जो है उसको हम जज कर सकेंगे, एंड हमारी वीकनेसेस लाइक क्या प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स है, दैट वी कैन जज आउट इजीली। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। जहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन फॉल्ट नहीं होती, एंड जहाँ पे गुड डेमोक्रेसी उसके बीच में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज़ बींग रूल्ड थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आज के ज़माने में डेमोक्रेसी तो टूडेज़ वर्ल्ड में की बात करें तो बेस्ट वे पीपल के थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेजोरिटी के थ्रू हो सकता है। However, for a small community there can be other ways of making democratic decision। लेकिन ये तो इंडिया हमारा बहुत बड़ा कंट्री, लेकिन जहाँ पे बहुत कम कम्युनिटी के पीपल हो, बड़ी कंट्री ना हो, तो उनके लिए डेमोक्रेसी कुछ अलग वे हो सकता है। ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एंड मेक डिसीजन डायरेक्टली। कहाँ पे, जहाँ पे कम्युनिटी बहुत कम है, पीपल कम है, तो और दे आर हैविंग टाइम, इनफ टाइम टू डिस्कस ऑल दिस मैटर्स, सो दे कैन कम टुगेदर, दे कैन सिट टुगेदर एंड दे कैन मेक डिसीजन डायरेक्टली। दिस इज़ हाउ द ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। लाइक ग्राम सभा में ऐसा ही करते हैं। नाउ डेज इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इन अर्लियर टाइम्स जहाँ पे ग्राम पंचायत होता था, वहाँ का जो सरपंच था, मीटिंग वॉज हेल्ड वंस इन अ मंथ, और जब भी पीपल को प्रॉब्लम होते थे तभी सरपंच आता था। ही यूज टू लिसन टू ईच एंड एवरी पीपल those who are having problem, and then he was supposed to make any decision. So this was all about the gram panchayat. So डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं एक एंगल से दैट इट इज़ एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इफ़ इट इज़ फॉलोड प्रॉपरली, इफ़ हम डेमोक्रेसी को प्रॉपरली मेंटेन करें, प्रॉपरली हम उसको फॉलो करें और एक आइडल बनाए, देन ओनली। So that was all about the chapter what is democracy, why democracy. Thank you for watching my video. If you enjoyed watching my video, then please do like and subscribe my channel. Thank you.